Dear students, Assalamu alaikum. This is our English book for class 6. We had completed unit 5 and 6 in our last English class, and in today class we will first read unit 7 and then complete the exercise of that unit. So let's check out this book content list. This is our list of contents in which we have completed 6 units. Unit number 5 and 6 we are completed in our last class, and today we are going to read and exercise unit 7. So our unit 7 is the treasure in the fireplace. So let's turn the page number 38. Open the page number 38. Unit number 7, the treasure in the fireplace. चिमनी में खजाना. There was once a peasant who led a hard and miserable life. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था जो कठिन और काबिले रहम ज़िंदगी गुजारता था. Although he worked in his field from morning till night, he stayed very poor. अगरचे वो सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था, फिर भी वो गरीब था. He tried to make his life better. He suffered for many years. उसने अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की. वो कई साल तक तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहा. One morning after he had recited his morning prayers, the peasant said, Lord, all these years I have honored you and I have never done anything wicked. एक दिन अपनी सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद किसान ने कहा, ए मेरे मालिक, इन तमाम सालों में मैंने तेरी हम्द की और कभी कोई गलत काम नहीं किया. Yet though I work from sunrise till sunset, I am still very poor. अगरचे मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, फिर भी मैं अभी तक बहुत गरीब हूँ. Lord, please give me some wealth to lighten my hardship. ए मालिक, मुझे कुछ दौलत दे दे ताकि मेरा कुछ बोझ हल्का हो. Put some treasure under my chimney. मेरी चिमनी के नीचे कुछ ख़जाना डाल दे. Then I will know that it is a call from you alone. फिर मैं समझूंगा कि ये सिर्फ़ आपकी तरफ से बुलावा है. After murmuring this prayer, the peasant went to work in his field. दबी दबी आवाज़ में ये दुआ मांगने के बाद किसान खेत में काम करने के लिए चला गया. A few days went by, but nothing unusual happened. Every morning the peasant looked in the fireplace under the chimney, but he saw only ashes. चंद दिन गुजर गए लेकिन कोई गैर मामूली वाक़या पेश ना आया. सुबह किसान अपनी चिमनी के नीचे चूल्हे में देखता था, लेकिन उसे सिर्फ राख नज़र आती थी. He did not give up hope and repeated his prayer each day. उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा और हर रोज़ अपनी दुआ को दोहराता. One afternoon, while he was plugging his field, dug up a bush. एक सेपेर को जब वो अपने खेत में हल चला रहा था, उसने एक झाड़ी उखेड़ी. As he pulled it out, he saw something buried in the soft earth under the roots.
जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, उसने जड़ों के नीचे नरम ज़मीन में कोई चीज़ दफन देखी। क्विकली द peasant made the hole bigger and dug deeper until he saw what was hidden in the soil. जल्दी से किसान ने उस सुराख को बड़ा किया और गहरी खुदाई की, यहाँ तक कि उसने उसे देख लिया जो ज़मीन में छुपा हुआ था। It was a big earthenware pot. ये एक बड़ा मिट्टी का बर्तन था। The peasant took the pot out of the hole and opened the lid. किसान ने गड़े से बर्तन को निकाला और इसका ढकना खोला। The pot was full of silver coins. बर्तन चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। ओ लॉर्ड, exclaimed the peasant. ओ मालिक, किसान ने जज्बाती लहजे में कहा, यू हैव आंसर्ड माई प्रेयर. आपने मेरी दुआ सुन ली. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू पिक अप द पोट एंड टेक इट होम, अ थॉट केम इनटू हिज हेड. जैसे ही वो बर्तन को उठा के घर जाने लगा, उसके जहन में एक ख्याल आया. नो, इट इज़ नॉट true that the Lord has heard my prayers, he said to himself. नहीं, ये सच नहीं है कि मालिक ने मेरी दुआ सुन ली है. उसने अपने आप से कहा. I asked him to put some treasure in the fireplace under my chimney. मैंने अल्लाह से इल्तिजा की कि ख़जाना चिमनी के नीचे मेरे चूल्हे में रखे. If I find the treasure there, only then can I be sure that it is from the Lord. अगर ये ख़जाना मैं वहाँ पाऊँ तो सिर्फ़ उसी सूरत में मुझे यकीन होगा कि ये मेरे रब की तरफ से है. Therefore this silver is not mine. इसलिए ये चांदी मेरी नहीं है. Turn the next page. So the peasant closed the pot and put the treasure back in the hole. बस किसान ने बर्तन बंद कर दिया और ख़जाना वापस उस गड्ढे में रख दिया. He went home and told his wife what had happened. वो वापस घर चला गया और ये सारा वाक़या अपनी बीवी को सुनाया. When she heard that the peasant had left all that wealth in his field, his wife became very angry. जब उसने सुना कि किसान तमाम दौलत खेत में छोड़ आया था तो उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया. You stupid fellow, what does it matter where you find the treasure? It is silver coins and can help us escape from this पॉवर्टी. तुम अहमक आदमी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको ख़जाना कहाँ से मिलता है? ये चांदी के सिक्के हैं और हमें इस गुर्बत से निजात दिला सकते हैं. गो बैक टू द फील्ड एंड ब्रिंग द पोट हेयर. खेत में जाओ और वो बर्तन यहाँ लाओ. बट वॉट एवर शी सेड, द पीजेंट रिफ्यूज टू गेट द सिल्वर. लेकिन उसने जो भी कहा, किसान ने चांदी लाने से इनकार कर दिया. फर्मली बिलीव्ड दैट द ओनली ट्रेजर ही कुड कीप वुड बी दैट फाउंड अंडर हिज चिमनी. उसे पूरा यकीन था कि सिर्फ वही ख़जाना जो उसे चिमनी के नीचे मिलेगा उसका होगा. When his wife knew that she could not change his mind, she was furious. जब उसकी बीवी को पता चला कि वो उसका जहन तब्दील नहीं कर सकती, वो गुस्से में आ गई. She went to her neighbor and told him about the pot full of silver coins. वो अपने हमसाय के पास गई और उसे सिक्कों से भरे बर्तन के बारे में बता दिया. Please dear,
Neighbor, she said, go to our field and take that pot and let us share the treasure. बराए मेहरबानी अज़ीज़ हमसाए, हमारे खेत में जाओ और वो बर्तन ले आओ, हम ख़जाना आपस में तकसीम कर लेंगे. The neighbor was overjoyed when he heard her story. हमसाए ने जब ये कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुआ. Although it was now dark, he went at once to get the treasure. अगरचे अभी अंधेरा था, वो फ़ौरन ख़जाना हासिल करने के लिए चला गया. Holding a lighted oil lamp in his hand, he went to the field. अपने हाथ में एक रोशन चिराग लेकर वो खेत में चला गया. It was easy for him to find the freshly dug hole. उसके लिए ताज़ा खुदाई वाले गड्ढे को ढूंढना आसान था. The man took the pot out and opened the lid. आदमी ने बर्तन बाहर निकाला और उसका ढकना खोला. But what a shock he got! Instead of silver coins, he saw poisonous snakes slithering and wriggling in the pot. लेकिन उसे बहुत सदमा हुआ. चांदी के सिक्कों की बजाय उसे बर्तन में बल खाते और फिसल कर हरकत करते हुए जहरीले सांप नज़र आए. Quickly he put the lid back on again. उसने फ़ौरन ढकना दोबारा वापस रख दिया. What a mean and nasty woman my neighbor's wife is. उसने दबी आवाज़ में अपने आप से कहा, मेरे हमसाई की बीवी कितनी कमीनी और बुरी औरत है. He muttered to himself, what a horrible trick she has played on me. उसने मेरे ख़िलाफ़ कितनी घिनौनी चाल चली है. If I had put my hand in the pot, I would have been dead now. अगर मैं अपना हाथ बर्तन में डाल देता तो मैं अब तक मर चुका होता. Perhaps she wanted that to happen. ग़ालिबन वो चाहती थी कि ऐसा ही हो. Perhaps she is angry with me for one reason or another, but I will teach her a lesson. ग़ालिबन वो किसी न किसी वजह से मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा. The angry man picked up the pot and carried it home. गुस्से से भरे आदमी ने बर्तन उठाया और उसे घर ले गया. He waited until midnight when his neighbors were fast asleep. उसने आधी रात तक इंतज़ार किया जब उसके हमसाए गहरी नींद सो गए. Then he climbed onto the roof of their house and threw the pot down the chimney into the fireplace beneath it. Then he returned home satisfied with what he had done. फिर वो उनके घर की छत पर चढ़ा और बर्तन चिमनी के नीचे चूल्हे में गिरा दिया. फिर वो अपने किए पर मुतमईन होकर घर वापस आया. The next morning, after saying his prayers, the peasant looked as usual in his fireplace. अगली सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद किसान ने हस्बे मामूल चूल्हे में देखा. There among the black ashes was the earthenware pot he had dug up in his field the afternoon before. वहाँ स्याह राख में मिट्टी का बर्तन था जो उसने अपने खेत में एक से पैर पहले खोदा था. It was broken
into many pieces, but among the pot fragments he saw countless silver coins. ये टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था, लेकिन बर्तन के टुकड़ों में उसने बहुत सारे चांदी के सिक्के देखे. Praised be the Lord, the peasant exclaimed in delight. किसान ने खुशी में पुकार कर कहा, तारीफ रब के लिए है. वो झुका और खुशी से हाथों को बुलंद करते हुए उसने कहा. He knelt down at, raising his hands in joy. He said, Lord, now I can take this treasure for you. You have put it in my fireplace as I beg to you. वो झुका और खुशी से हाथों को बुलंद करते हुए उसने कहा, मालिक, अब मैं ये ख़जाना ले सकता हूँ. Now I know that this wealth is really meant for me. How can I thank you? क्योंकि आपने से मेरे चूल्हे में रख दिया जैसा कि मैंने इल्तिजा की थी. मैं जानता हूँ कि ये दौलत वाकई मेरी है. मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ. In this way God rewarded the peasant who trusted in him. इस तरह अल्लाह ताला ने किसान को जिसने उस पर भरोसा किया था इनाम से नवाजा. तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं. सो टर्न द पेज. स्टूडेंट, ये हमारा एक्सरसाइज का पेज है. क्वेश्चन नंबर ए है, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस टू आंसर दिस क्वेश्चंस. इसमें हमें 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम आपको सेंड कर देंगे. इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, चेंज द फॉलोइंग एज गिवन इन द एग्जाम्पल. यू कैन कंसल्ट आवर डिक्शनरी. ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनके हमें नाउन्स लिखने हैं, एडजेक्टिव्स लिखने हैं और एडवर्ब्स लिखने हैं. ये हमें मिसाल के तौर पर उन्होंने तीनों ऑप्शंस में फिल करके दिया है. जिस तरीके से ये वर्ड दिया गया है रिसाइट, और रिसाइट का जो नाउन होता है वो रिसाइटेशन होता है. ये इन्होंने हमें फिल करके दिया है, बाकी हमें फिल करने हैं. उसके बाद वर्ड्स और एडजेक्टिव्स हैं. वेल्थ है पहला वर्ड. वेल्थ का जो एडजेक्टिव होगा वो वेल्दी होगा. उसके बाद वर्ड्स और एडवर्ब्स हैं. इसमें फर्स्ट वर्ड हमें फर्म दिया गया है और इसका एडवर्ब्स जो है वो फर्मली होता है. इसी तरीके से हमें इन तीनों कॉलम्स को फिल करना है. तो चलिए चेक करते हैं. पहले हम वर्ड्स और नाउन्स को चेक करते हैं. ये एक तो हमें फिल करके दिया हुआ है. दूसरा वर्ड हमें जो है हार्ड दिया गया है और हार्ड का जो नाउन है वो होगा हार्डनेस. उसके बाद वर्ड है बेटर, और बेटर का जो नाउन होगा वो होगा बेटरमेंट्स. बेटर का नाउन होगा बेटरमेंट. और उसके बाद वर्ड है हमें दिया गया है रिपीट, और रिपीट का जो नाउन होगा वो होगा रिपीटिशन. उसके बाद वर्ड है पुअर, और पुअर का जो नाउन होगा वो होगा पुअर्टी. उसके बाद वर्ड है सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई का जो नाउन होगा वो सेटिस्फिकेशन होगा. इस तरीके से हमें 2 कॉलम बनाने हैं कापी पर, और एक में हमें वर्ड्स लिखना है, दूसरे कॉलम में हमें नाउन लिखना है. वर्ड्स के कॉलम में हम वर्ड्स लिखेंगे और नाउन के कॉलम में हमें नाउन लिखना है. उसके बाद दूसरा कॉलम हम बनाएंगे, उसमें हमें 2 कॉलम बनाने हैं. एक में हम वर्ड्स लिखेंगे और दूसरे में हम एडजेक्टिव्स लिखेंगे. तो वर्ड्स के कॉलम में हम वर्ड्स लिखेंगे और जो हम इन वर्ड्स के एडजेक्टिव्स बनाएंगे हम वो उसके एडजेक्टिव के कॉलम में लिखेंगे. तो दूसरा वर्ड हमें जो दिया गया है वो दिया गया है स्टूपिडिटी, और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा स्टूपिड. उसके बाद जो हमें वर्ड दिया गया है वो है सेटिस्फाई, और सेटिस्फाई का जो एडजेक्टिव होगा वो सेटिस्फाइड होगा. उसके बाद वर्ड है एंगर, और एंगर का जो एडजेक्टिव होगा वो एंग्री होगा. और उसके बाद वर्ड है मिजरेबली, और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो मिजरेबल होगा. उसके बाद वर्ड है पॉइजन, और पॉइजन का पॉइजनस होगा एडजेक्टिव. उसके बाद
थर्ड कॉलम हमें दिए गए वर्ड्स और एडवर्ब्स का, इसके भी हमने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में वर्ड्स लिखने हैं और दूसरे में एडवर्ब्स लिखने हैं। तो हमारा जो वर्ड है वो है फ्यूरियस, और फ्यूरियस का जो एडवर्ब होगा वो होगा फ्यूरियसली। उसके बाद वर्ड है क्विक, और क्विक का जो एडवर्ब होगा वो होगा क्विकली। उसके बाद वर्ड है हॉरिबल, और हॉरिबल का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा हॉरिबली। उसके बाद है विकेड, विकेड का एडजेक्टिव होगा विकेडली। उसके बाद है लाइट, और लाइट का एडवर्ब होगा लाइटली। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है टिक द ट्रू स्टेटमेंट्स। ये हमें ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं, हमने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और जो सही होगा उसको हमने ट्रू का साइन लगाना है, और जो गलत सेंटेंस होगा उस पर हमने फॉल्स का साइन लगाना है। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है द पीजन लेड अ हार्ड बट वंडरफुल लाइफ। ये सेंटेंस जो है ये हमारा ट्रू है, और इस पर हम ट्रू का साइन लगाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 है द पीजन सेज पुट सम ट्रेजर अंडर माई चिमनी, और ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो ट्रू है, और इस पर हम ट्रू का साइन लगाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 3 है द पीजन्स वाइफ न्यू दैट शी कुड नॉट चेंज हिज माइंड, और ये स्टेटमेंट भी हमारी जो है वो ट्रू है, और इस पर हम ट्रू का साइन लगाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4 है इफ़ आई हैड पुट माई हैंड इन द पोट आई वुड हैव बीन डेड नाउ सेड द पीजन, और ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, और इस पर हम फॉल्स का साइन लगाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 है परहैप्स शी इज़ एंग्री विद मी फॉर वन रीज़न और अनदर सेड द नेबरर, और ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, और इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आपने स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स में चेंज करना है, और इस एक्सरसाइज को आपने बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन डी है समराइज द स्टोरी बाय यूजिंग ओनली 20 सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन हमने फेयर कॉपी पे नहीं करना, क्योंकि ये हम ग्रामर की कॉपी पर करेंगे, समरी हम ग्रामर पे करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड ट्रेजर। तो इस क्वेश्चन को भी हम काट रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन एफ है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं सफ़र, प्रेयर, एक्सक्लेम, स्टूपिड, कॉइन्स, फील्ड, मेटर, एंग्री, हॉरिबल, क्विकली। ये वर्ड्स हैं और इनके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो इन वर्ड्स के सेंटेंस हम आपको सेंड कर देंगे, और इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर क्वेश्चन को उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल। ये हमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इन एग्जाम्पल्स को पढ़कर हमने ये सेंटेंस जो है चेंज करने हैं। वी यूज़ कैन अनलेस इंस्टीड ऑफ इफ़ नॉट। इन वर्ड्स के हमें इन जो सेंटेंसेस हैं इनमें यूज़ करने हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सेंटेंस को। ये नंबर 1 है द आयरन वुड नॉट वर्क इफ़ यू डू नॉट टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो ये होगा द आयरन वुड नॉट वर्क अनलेस यू टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है यू कैन नॉट ट्रेवल ऑन अ ट्रेन इफ़ यू डू नॉट गेट अ टिकट, और इसको हम चेंज करेंगे यू कैन नॉट ट्रेवल ऑन अ ट्रेन अनलेस यू बाय अ टिकट। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है द मिल्क विल गो बैड इफ़ यू डू नॉट कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर। इसको हम चेंज करेंगे द मिल्क विल गो बैड अनलेस यू कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है योर गेम वुड नॉट इम्प्रूव इफ़ यू डू नॉट टेक प्रैक्टिस, और इसको हम चेंज करेंगे योर गेम वुड नॉट इम्प्रूव अनलेस यू गेट प्रैक्टिस। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 है यू कैन नॉट गो फिशिंग इफ़ द स्टॉर्म डज नॉट स्टॉप, और इसको हम चेंज करेंगे यू कैन नॉट गो फिशिंग अनलेस द स्टॉर्म स्टॉप्स।
उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है सलीम वुड नॉट बी बेटर इफ़ ही डज़ नॉट टेक मेडिसिन्स, और इसको हम चेंज करेंगे सलीम वुड नॉट बी बेटर अनलेस ही टेक्स मेडिसिन्स। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 है दे विल नॉट ट्रीट यू गुड इफ़ यू डू नॉट ट्रीट देम वेल, इसको हम चेंज करेंगे दे विल नॉट ट्रीट यू गुड अनलेस यू ट्रीट देम वेल। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी और इसे आपने फेयर कॉपी पर उतारना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।